اب بات کریں گے ایم کیو ایم پاکستان نے پاور سیکٹر کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سڑک کو بند کر کے شہریوں کو تکلیف دینے کے بجائے حکومت کو مسائل کا حل بتایا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ مسائل کے حوالے سے وزیر اعظم سے بات کر سکتی ہے۔ آئی پی پیز نے پاکستان سے اتنا کمایا ہے کہ انہیں نقصان نہیں ہوگا۔ میاں نواز شریف پاکستان کے لیڈر ہیں، پنجاب کے نہیں۔ وزیر اعظم کو پورے پاکستان کا اکٹھے پیکج کا اعلان کرنا پڑے گا۔ پورے پاکستان میں بجلی کے ریٹ کم ہونے چاہیے۔ آئی پی پیز کی اور پاور سیکٹر کی تمام سرکولر ڈیٹ کی شکل میں ہے، لاسز کی شکل میں ہے، بجلی کی زیادہ قیمتوں کی شکل میں ہے، بجلی کے زیادہ بل کی شکل میں ہے۔ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو پاکستان کی اکانومی نہیں چلے گی، خاکم بدن پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا۔ اور ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 2.6 ٹریلین 2600 ارب روپے ابھی آئی پی پیز کو دینے ہیں۔ 2600 ارب روپے کا پاکستان قرضدار ہے۔ ہمارے ڈیفنس کا بجٹ 2200 ارب روپے ہے۔ ڈیفنس کے بجٹ سے زیادہ تو پیسے ابھی ہم نے دینے ہیں۔ پھر ہر سال تقریباً جو ہے وہ 2000 ارب روپے کا لاس ہے۔ اس سال حکومت نے 1700 ارب روپے رکھے صرف نقصانات کے لیے، 1700 ارب روپے۔ تو اس کی پوری ڈیٹیل میں جا کر جب یہ بات پتہ چلتی، اور ہم نے اس سارے پروسیس میں کسی پارٹی کے دور کے حکومت کو ہم نے کنڈیم نہیں کیا، ہم نے ان کے اوپر اعتراض نہیں اٹھایا، ہم نے اپنی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی ہے۔ ہم نے کہا کہ بھئی کسی دور میں بھی جب یہ آئی پی پیز لگی ہیں ان کی نیت پر شک نہیں کرتے، انہوں نے اچھی نیت سے لگائی ہوں گی وہ تمام آئی پی پیز، لیکن آج اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلا۔ تو پاکستان کی آج کی حکومت کو، حکمرانوں کو اس مسئلے کو آج حل کرنا ہے۔ اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو تقریباً 43,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اور ہماری جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں جس کے ذریعے بجلی پہنچائی جا سکتی ہے اس کی کیپیسٹی صرف 2200 میگا واٹ، 22,000 میگا واٹ، صرف 25,000 میگا واٹ ہم بجلی ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی کیلکولیشن غلط ہے کہ 45,000 میگا واٹ ہم پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس کیپیسٹی بجلی پہنچانے کی جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 22 سے 25,000 میگا واٹ ہے۔ خیر اس پہ آرگومنٹ یہ آتی ہے گورنمنٹ کے کہ بھائی ہر وقت سارے پلانٹ نہیں چل رہے ہوتے، اس کی مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب وہ مینٹیننس ہو رہی ہوگی تو اس وقت اس کو بند کیا جائے گا، تو اس لیے ہمیں ایکسٹرا کیپیسٹی رکھنا ضروری ہے۔ اینی ویز آج کے پاکستان میں جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی نہیں ہے، یہ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہی لوڈ شیڈنگ۔ آج کے پاکستان میں بجلی ضرورت سے لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ وجوہات ہم کئی دفعہ بتا چکے کہ بھائی جہاں لاسز ہیں حکومت وہاں پر جو ہے وہ بجلی بند کر دیتی ہے رہنے کے باوجود، کیونکہ جتنی بجلی وہ بناتے ہیں اس میں ان کو زیادہ لاس ہوتا ہے، زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ بھائی اس کو یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹ کو کارپیٹ کے اندر ڈالتے اب یہ ڈسٹ باہر آ گئی ہے۔ اب یہ پاکستان نہیں چل رہا۔ انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں کہ بھائی 6 سینٹ سے 9 سینٹ میں ہمیں بجلی دے دیں، ہمیں 16 سینٹ میں بجلی پڑ رہی ہے، ہم دنیا میں اپنی پروڈکٹ کو بیچ ہی نہیں سکتے۔ منکی پاکس کی بات کریں گے۔ منکی پاکس کے پیش نظر ایئرپورٹس پر اسکریننگ کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ڈی جی ہیلتھ سندھ اور ڈائریکٹر ایئرپورٹ ہیلتھ سروسز کا جناح ایئرپورٹ کا دورہ انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، جبکہ دوسری جانب احتیاطی تدابیر کے لیے بارڈر ہیلتھ سروسز پاکستان نے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خورشید رحمانی سے۔ خورشید بتائیے گا کیسا رہا یہ ایئرپورٹ کا دورہ؟ جی منکی پاکس اور ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ایئرپورٹ مینیجر ڈی جی ہیلتھ سندھ اور ڈائریکٹر ایئرپورٹ ہیلتھ سروسز کا اسپتال کا دورہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے متعلقہ اعلیٰ حکام کا جناح انٹرنیشنل پر انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ ایم سی او سی ہدایت پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہی ہے۔ اس حوالے سے بین الاقوامی پروازوں سے پاکستان آنے والے تمام مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے، جبکہ مشتبہ مسافروں کے لیے بارڈر ہیلتھ سروسز کا آئسولیشن روم قائم کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے۔
इस हवाले से आइसोलेशन रूम में मुश्तबा मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री अलामत का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से अलामत की सूरत में सैंपल PCR टेस्ट भी भिजवाया जा सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान में तमाम एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी और एहतियाती तदाबीर की हिदायत की गई है, जबकि एहतियाती तदाबीर के लिए बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान ने मरासला भी जारी किया है। मरासले के मुताबिक एयरपोर्ट समेत तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग बेहतर बनाने की हिदायत की गई है, जबकि मुश्तबा जख्मों या इससे वाबस्ता अलामत शामिल मुसाफिरों को आइसोलेट करने और रिपोर्ट करने की भी हिदायत जारी की गई है, जबकि वायरस से निपटने के लिए पॉइंट्स पर पहले से मौजूद सिस्टम को बहाल करने की हिदायत की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, अब बात करेंगे अहम मसले पर। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर आजम मुगल कहते हैं IT इंडस्ट्री के लिए इंटरनेट सर्विस बहुत अहम जुज़ है। इंटरनेट की इंतहाई सुस्त सर्विस की वजह से IT इंडस्ट्री को अब तक $30 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, बताएगा उन्होंने मजीद क्या कहा? देखा जाए मुल्क भर में जो इंटरनेट की सर्विस है और उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि फायरवॉल लगने के बाद जो सर्विसेज हैं उसमें मुतासर हुई हैं। क्या आपके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री IT की उसको कितनी मुतासर होगी, जानते हैं पाशा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आजम साहब। आजम मुगल साहब, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं मईशत पे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने देखा कि हमने जो है वो कल एक प्रेस रिलीज जारी की है और उस प्रेस रिलीज में हमने क्लियर फिगर्स दिए हैं कि वी हैव ऑलरेडी कमिटेड $300 मिलियन लॉस। और ये फिगर जो है वो कोई हवाई फिगर नहीं है, ये हमने एक छोटा सा सर्वे जो है वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर रन किया था और उसकी बेसिस के ऊपर, उन फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर जो है वो हमने ये एक फिगर आउट की है। लेकिन आपको इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये फिगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ IT कंपनीज की है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो शायद इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। और आप ये देखें कि हमारे मुल्क में जो फाइबराइजेशन है वो मोस्टली जो है वो आपके जो बड़े शहर हैं या आपकी जो है सिटीज़ हैं उसके अंदर तो मौजूद है, लेकिन रिमोट एरिया में जो है वो आपकी तो फाइबर भी मौजूद नहीं है। तो वहाँ पे हमारे जितना भी फ्रीलांसर बैठा हुआ है या हमारा अपनी कंपनीज का रिमोट वर्कर बैठा हुआ है, वो सारे इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं और उनके पास जो ऑप्शन है वो 4G का या मोबाइल नेटवर्क का ही है। तो जब ये मोबाइल नेटवर्क की अनअवेलेबिलिटी रही है तो ये सारा का सारा काम जो है वो ठप हुआ पड़ा हुआ था। जी, जैसे कि आपने सुना, पाशा ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो इक़दामात फायरवॉल के लगे हैं उससे अब तक जो मजमूई तौर पर $30 करोड़ का नुकसान हो चुका है और इस पे अगर यही सिलसिला जारी रहा तो ये नुकसान मजीद बढ़ सकते हैं। जी, शहर कायद में बिजली और गैस की बिलातातुल फ्राहमी ख्वाब बन गई है। रामस्वामी गार्डन, लियारी, शेरशाह और मंगोपेर समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बुनियादी सहूलतों की बिलातातुल फराहमी अवामी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। कराची में गैस 8 और बिजली 6 से 10 घंटों से गायब रहने लगी। गैस और बिजली की आंख मचुली से शहरी परेशान हो गए। कहते हैं लकड़ियों और गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए हैं। रही सही कसर जनरेटर के अखराजात ने पूरी कर दी है। गैस और बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है। सारा दिन यानी कि गैस नहीं है साहब, बिल्कुल सारा दिन। रात को भी हम चूल्हा जलाते हैं फटियों से, यानी कि खोखे लेकर उससे जला के फिर खाना बनाते हैं। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी खाना नहीं बनता, क्या करें, परेशानी, बहुत परेशानी। वरना पहले तो बिजली के ऐसे हालात थे कि 2-2, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे नहीं होती थी लाइट, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है सूरत हाल। बिजली के बिल जो वो लगा रहे हैं दरअसल वो उनका भी कसूर नहीं, हमारे अपने बड़े जो बेटे हैं सारा कसूर उनका है। दूसरी जानिब तर्जुमान कलेक्टर का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है, जबकि सूई सदन का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ गैस फील्ड से सिस्टम में आने वाली गैस प्रेशर में कमी का सामना है। तमाम रोजाना की बुनियादों पर लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत दीगर इक़दाम किए जाते हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली गैस के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर न सिर्फ हल किया जाए बल्कि इन यूटिलिटीज़ की कीमतों को भी कम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मामूल पर ना सका। आज भी अंदरूनी मुल्क चलने वाली मुतादिद परवाजें मनसूख हो गई हैं। जी हाँ, मुतादिद परवाजें मनसूख हो गई हैं। इस्लामाबाद जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 406 मनसूख हो गई है, जबकि सरीन एयर की लाहौर रवाना होने वाली परवाज़ ER 522 भी मनसूख कर दी गई। कोयटा जाने वाली PIA की परवाज़ PK 310 मनसूख हो गई। कौमी एयरलाइन की लाहौर जाने वाली परवाज़ें PK 302 और 306 भी कैंसिल हो गई हैं। इसी तरह BIA की सखर जाने वाली परवाज़ PK 536 भी मनसूख हो गई है। लाहौर जाने वाली एयर सयाल की परवाज़ PF 143 भी मनसूख कर दी गई।
बात करेंगे, जमात इस्लामी ने शहर की खस्ताहाल सड़कों का जिम्मेदार हुकूमत सिंध को करार दे दिया है। कराची के नायब अमीर एडवोकेट सैफुद्दीन कहते हैं कि शहर की सड़कें हुकूमत ने तबाह की हैं। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे नुमान गुल। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से बरसात की पेशगोई कर दी गई है और कराची की अगर सड़कों की बात कर ली जाए तो खस्ता हाल सड़कें हैं, उबलते गटर हैं, सीवरेज का पानी सड़कों पर मौजूद है। शहरियों की ज़िंदगियाँ जो है वो अजियत का शिकार होती जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ जमात इस्लामी के नायब अमीर और KMC में अपोजिशन लीडर एडवोकेट सैफुद्दीन साहब मौजूद हैं। देखिए, जिम्मेदारी तो बराह रास्त हुकूमत पर आती है। हुकूमत सिंध बराह रास्त जिम्मेदार है जो 16 साल से यहाँ पर है और अरबों और खरबों रुपए के फंड्स उन्होंने खर्च करने का दावा किया हुआ है। ज़ाहिर खर्च हुए भी हैं और आइंदा की भी बड़ी खुशनुमा स्कीमें उन्होंने ऐलान की हुई हैं। लेकिन सूरत हाल आप ये देखिए कि कराची में कोई सड़क इस वक्त ऐसी बाकी नहीं है, चंद सड़कों के अलावा शार फैसल है, शार कायदीन है जो पुरानी बनी हुई हैं। इनके अलावा हर सड़क का इस वक्त ये हाल है कि गड़े एमिजिना रोड पे चले जाइए जो KMC को जाती है, उसका क्या हाल हो चुका है। और मेयर साहब जो खुद डिफेंस में रिहाइश पजीर हैं, वज़ीर बल्दियात साहब वो भी माशाल्लाह अस्करी में कहीं रहते हैं। तो अगर ये लोग अपने इन सड़कों से निकल कर कहीं गली मोहल्लों में चले जाएं, किसी बड़ी सड़क पर चले जाएं, पूरा कराची इस वक्त जिस तरह तबाही के शिकार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट सैफुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पर शहर कराची की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और अब देखना यह है कि मुमकिन होने वाली बरसात के बाद इस शहर का क्या हुलिया सामने आएगा। जी, वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इदारों को बेहतर बनाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। सरकारी इदारों में आला ओहदों पर तकर्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। आला ओहदों में CEO, CFO, CIA और CS शामिल हैं, जबकि वजारत ख़जाना ने गाइडलाइन से मुतालिक वजारतों को हिदायत जारी कर दी हैं। जी हाँ, वजारतों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत की ज़ेर इंतज़ाम इदारों को बेहतर बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सरकारी इदारों में आला ओहदों पर तकर्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आला ओहदों में CEO, CFO, CIA और CS शामिल हैं। वजारत ख़जाना ने गाइडलाइंस से मुतालिक वजारतों को हिदायत जारी कर दी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हिदायत जारी कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इदारों को बेहतर बनाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। सरकारी इदारों में आला ओहदों पर तकर्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। आला ओहदों में CEO, CFO, CIA और CS शामिल हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद है। ताहा, बताएगा क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए, वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इदारों को बेहतर बनाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। सरकारी इदारों में आला ओहदों पर तकरीर के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। आला ओहदों में CEO, CFO, CIA और CS शामिल है। वजारत ख़जाना ने नई गाइडलाइन से मुतालिक वजारतों को हिदायत जारी कर दी हैं। आला ओहदों पर तकर्रियों की गाइडलाइंस का मकसद इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है, जबकि सरकारी इदारों में आला ओहदों पर तकर्रियों के इशारात भी जारी कर दिए गए हैं। इदारों को शॉर्टलिस्ट भी किया जाएगा, जबकि इदारों में गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए गाइडलाइन मजीद जो है वो भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया ताहा। डिप्टी कमिश्नर मलीर रेती बजरी माफिया के खिलाफ डट गए। कमिश्नर को लिखे गए खत में महकमा मादनियात के अफसरान को माफिया का सरपरस्त करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर मलीर रेती बजरी माफिया के खिलाफ डट गए हैं। कमिश्नर को लिखे गए खत में महकमा मादनियात के अफसरान को माफिया का सरपरस्त करार दे दिया है। आपको बताएं कि मलीर की ज़राअत और माहौलियात की तबाही, महकमा मादनियात के अफसरान रेती बजरी माफिया से मिल गए। डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलीम मेहरबानी ने कमिश्नर कराची और IG सिंध को खत लिख दिया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजिज़, बताएगा। जी हाँ, ये डिप्टी कमिश्नर मलीर अब्दुल जो मीरवानी हैं, उन्होंने इरफान सलीम मीरवानी उन्होंने खत लिखा है और बड़ा मजबूर होकर खत लिखा है कि मलीर में पुलिस के SHOs और रेती बजरी उठाने के लिए जो महकमा मादनियात के जो SHO और दीगर अफसरान हैं वो रेती बजरी माफिया के सहूलतकार बन गए हैं और वो मलीर के माहौलियात, ज़राअत और ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर के बकौल जो उन्होंने दफा 144 नाफिज किया हुआ है, सिंध ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी रेती बजरी उठाने पर पाबंदी है और ये बरसों से पाबंदी आयद है।
لیکن اس کے باوجود بھی ملیر کے مختلف علاقوں جیسا کہ میمن گوٹ ہے، شالطیف ٹاؤن ہے، بن قاسم کا علاقہ ہے، گڈاب کا علاقہ ہے، ان علاقوں سے متواتر ریتی بجری کے بڑے ڈمپر اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ رات کے اوقات میں چوری ہوتی ہے، چوری اٹھائے جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے وہ ان سے ملے ہوئے ہیں. کمشنر کراچی کو لکھا ہے، آئی جی سندھ کو لکھا ہے ڈپٹی کمشنر ملیر نے تاکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے. جی کارروائی کی جائے. بہت شکریہ عاجز جمالی. اور اب نظر ڈالیں گے جرائم کی دنیا پر. ساٹھ سپر ہائی وے تھانے کی حدود میں شہری نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. مقتولہ کی شناخت آمنہ کے نام سے ہو گئی ہے. پڑوسی کے مطابق رات میں گھر سے لڑائی کی آوازیں آئیں. محلے والے جمع ہوئے تو مقتولہ کا شوہر گھر سے نکل کر بھاگ گیا. اندر جا کر دیکھا تو آمنہ کی لاش پڑی تھی. فیملی ایک ہفتہ قبل ہی شفٹ ہوئی تھی. اپڈیٹ کریں گے سلمان سلیم. دیکھیں بالکل اس وقت ہم سکھیا گوٹ سائٹ سپر ہائی وے تھانے کے حدود میں موجود ہیں اور گزشتہ رات ایک واقعہ یہاں پہ پیش آیا ہے. خاتون کو جو ہے وہ اس کے شوہر نے قتل کر دیا اور اس کے بعد شوہر فرار ہو گیا. خاتون کی شناخت آمنہ کے نام سے ہوئی جبکہ اس کے جو شوہر ہیں جو قاتل ہے اس کی شناخت جو ہے وہ رجب علی کے نام سے کی گئی ہے. اس وقت ہم اس کے گھر کے باہر موجود ہیں اور گھر کے اوپر جو ہے وہ تالا لگا ہوا ہے. پڑوسی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا واقعہ تھا، کتنے بجے پیش آیا تھا اور گھر میں کتنے افراد رہتے تھے. یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں کے رہائشی ہیں، یہ واقعہ گزشتہ رات ہوا ہے، گھر میں کتنے افراد ہیں اور کس طرح یہ واقعہ ہوا تھا؟ سر بات یہ ہے، یہ 11-12 بجے کے بیچ میں واقعہ ہوا ہے اور اس میں 4 بچے خود میاں بیوی تھے. جب یہ آگ میں پھٹا وغیرہ ہوا تو کچھ یہاں پڑوسی اٹھ کر دیکھا بھائی کیا ہم چھڑوانے کے لیے جیسے آتے تو پھر ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. بولا ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، کوئی نہیں آئے اندر. تو گھر کا مسئلہ کر کے کوئی اندر نہیں گیا. تو پھر جب یہ عورت کی آواز آئی چلانے کی، پھر قریب میں وہ بندہ باہر نکلا اور فرار ہو گیا، یہاں سے بھاگ گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور یہ جو اس کا شوہر ہے یہ کوئی منشیات کا استعمال بھی کرتا تھا؟ منشیات کا تو خود تو استعمال کرتا تھا بندہ، باقی اس کی ماشاءاللہ عورت جو ہم نے سنا ہے جہاں تک وہ خود ذمہ دار تھی، گھر کی کمانے والی وہی تھی. الکرم کمپنی ہے پیچھے سائٹ سپر ہائی وے پہ، وہاں کی ٹھیکیدار تھی وہ خود. ان کو ابھی ہفتہ ہوا ہے نئے، مطلب ابھی رہائش ہوئی ہے ان کے، ایک ہفتہ ہوا ہے تقریباً. فیملی میں کچھ 3-4 بچے ہیں اور خود میاں بیوی 2 بس ہیں. دیکھیں بالکل تقریباً 3 سے 4 افراد ہیں فیملی کے اندر، میاں بیوی اور بچے ہیں اور شوہر نے جو ہے وہ گزشتہ رات اپنی بیوی کو قتل کیا اور اس کے بعد فرار ہو گیا تھا. ہم واقعے کا مقدمہ سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں درج کیا جائے گا اور اس کے اوپر تفتیش کی جائے گی. تاہم پولیس نے فرار ہونے والے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے. جی عدالتی کیسز کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی. شارع فیصل سے لاپتہ خرم کاظمی کے والد اور عیدگاہ سے لاپتہ اختر علی کے اہل خانہ عدالت میں پیش ہوئے. عدالت کا پولیس کو لاپتہ شہری کا مقدمہ درج کرنے کا حکم. عدالت نے کیسز کی مزید سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی ہے. جی ہاں، سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت. شارع فیصل سے لاپتہ خرم کاظمی کے والد اور عیدگاہ سے لاپتہ اختر علی کے اہل خانہ عدالت میں پیش ہوئے. عدالت کا پولیس کو لاپتہ شہری کا مقدمہ درج کرنے کا حکم. عدالت نے کیسز کی مزید سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی ہے. ایک ہفتے کے اندر روپے کی قدر میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسے معمولی کمی سے 278 روپے 54 پیسے کا ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 280 روپے 40 پیسے پر برقرار رہا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اشرف خان سے. جی دیکھا جائے ایک ہفتے میں روپے کی قدر میں ملا جلا رجحان رہا ہے. ایک ہفتے میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر صرف 1 پیسے کمی سے 278 روپے 54 پیسے پہ بند ہوا ہے. ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے 280 روپے 40 پیسے برقرار رہا ہے، جبکہ ایک ہفتے میں یورو 1 روپے 89 پیسے مہنگا ہو کر 307 روپے 21 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 3 روپے 31 پیسے مہنگا ہو کر 360 روپے 25 پیسے پہ پہنچ گیا ہے. جبکہ دیکھا جائے ایک ہفتے میں یو اے درہم 76 روپے 35 پیسے پر ہی برقرار رہا ہے اور سعودی ریال بھی 74 روپے 55 پیسے برقرار رہا ہے. دیکھا جائے اسٹیٹ بینک کا ایک ہفتے میں ذخائر میں 11 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ بڑھ کر 9 ارب 27 کروڑ ڈالر پہ پہنچ گئے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے جو فنڈس ملنے کے بعد جو رواں ماہ کے آخر میں منظوری ملے گی تو اس سے روپے کی قدر مزید بہتری دیکھی جا سکے گی. جی بہت شکریہ اشرف خان آپ کا.
महंगी तरीन बिजली और बुलंद शरह सूद टेक्सटाइल की बरामदात मुतासिर। जून 24 के मुकाबले जुलाई 24 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 10% कमी से 1 अरब 27 करोड़ डॉलर रह गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी महंगी बिजली और बुलंद शरह सूद की जद में आ गई। नए माली साल के आगाज पर इदारा शुमारियात ने टेक्सटाइल की बरामदात का डाटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जून 24 के मुकाबले जुलाई 24 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 10.1% की कमी हुई। जून 24 की 1 अरब 41 करोड़ डॉलर के मुकाबले जुलाई 24 में टेक्सटाइल ग्रुप की बरामदात 1 अरब 27 करोड़ डॉलर रह गई। जुलाई 23 के मुकाबले जुलाई 24 में टेक्सटाइल की बरामदात 3.1% कमी हुई। जून 2024 में टेक्सटाइल ग्रुप की बरामदात 1 अरब 41 करोड़ डॉलर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक जून 24 के मुकाबले जुलाई में नेटवेयर की बरामदात 16% कमी से 35 करोड़ 80 लाख डॉलर रही। रेडीमेड गारमेंट की बरामदात 9% कमी से 29 करोड़ 60 लाख डॉलर और बेडवेयर की बरामदात 9% कमी से 21 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। जून 24 के मुकाबले जुलाई 24 में तौलिए की बरामदात 20% कमी से 7 करोड़ डॉलर रही है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के मुताबिक बिजली की बुलंद कीमत की वजह से टेक्सटाइल ग्रुप की बरामदात घट रही है। पैदावारी लागत बढ़ने से रीजनल ममालिक से मुकाबला मुश्किल तरीन हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। मंकी पॉक्स का खतरा अब्बासी शहीद अस्पताल में भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर ली गए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जावेद इकबाल के मुताबिक 12 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया है। जी, फरहान खान हमें बताइएगा कि कैसे इंतजामात किए गए हैं। जी बिल्कुल, शहर कायद में मंकी पॉक्स का डर जो है वो बढ़ने लगा है। अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर क्या इंतजामात हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जावेद इकबाल साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया साहब के वक्त का। मुझे बताइएगा वार्ड की जो वो क्या तैयारी की जा रही है और कितने बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा, और अब तक कोई केस इस तरीके का देखने में आया है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास तो इस तरह का कोई भी केस नहीं आया और ये 12 बिस्तरों का हमने वार्ड तैयार कर लिया है। 10 मिनट में वो फिर तैयार हो जाएगा, तो वो 24 आवर ओपन रहेगा। अगर कोई केस आता है तो इंशाअल्लाह ताला वो एंटरटेन हो जाएगा। मुझे बताइएगा ये तीनों शिफ्टों पर मुश्तमिल होगा, तीनों शिफ्ट के अंदर इसके अंदर डॉक्टर्स जो है वो बर वक्त मौजूद होंगे, कितना अमला होगा और किस तरीके जो है वो उसको ट्रीटमेंट फराहम किया जाएगा? मेडिसिन के डॉक्टर्स ही देखेंगे उनको, और वो जैसे ही पेशेंट आएगा तो वो स्टाफ अगर हर वक्त से स्टाफ होगा, फिर जैसे ही पेशेंट शिफ्ट होगा ER से तो फिर वो डॉक्टर्स भी इस तरह। बिल्कुल 12 बिस्तरों के ऊपर जो वो वार्ड मुश्तमिल होगा, जिसमें तीनों शिफ्टों के अंदर तिब्बी अमला जो है वो यहाँ पे बर वक्त मौजूद होगा। MS जावेद इकबाल साहब के मुताबिक अभी तक जो वो कोई एक भी केस यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ है। अलबत्ता कोई ऐसी सूरत हाल अगर आगे आती है तो उससे लड़ने के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल जो वो बिल्कुल तैयार है। जी।